नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 22 जुलाई को आईबीए और ईओपीयू के लीडर्स के बीच में वार्ता होनी है। ये वार्ता मुख्य रूप से पेंशन अपडेशन के बारे में और जो 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के रेजिडुअल इश्यूज थे उनके बारे में होना था। और 22 जुलाई को ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है और इसका आउटकम यानी कि जो भी मिनट्स है वो डिक्लेयर हो गया है। फ्रेंड्स, इसमें फॉलोइंग आईबास कमेटी वाज रिप्रेजेंटेड बाय श्री CH मल्लिकार्जुन राव, MD and CEO पंजाब नेशनल बैंक, चेयरमैन ऑफ द कमेटी, एंड श्री MB राव, MD and CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वाइस चेयरमैन, एंड मिस्टर ओम प्रकाश मिश्रा, DMD SBI, श्री SL जैन, ED बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री देवाशीष मुखर्जी, ED कैनरा बैंक, एंड श्री गोपाल मुरली भगत, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव IBA ने पार्टिसिपेट किया। और यूनियन की तरफ से श्री कामरेड राजेन नागर एंड कामरेड CS वेंकटचलम ऑफ AIBA, कामरेड SC बजाज एंड कामरेड SK बंदिश फ्रॉम NCB, कामरेड उपेंद्र कुमार फ्रॉम NBOW एंड कामरेड OP शर्मा फ्रॉम INBF, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फ्रेंड्स, इसमें बेफी ने पहले से ही इसको नहीं बुलाया गया था और बेफी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। While thanking the IBA for commencing the discussion of the important issue of review of pension scheme, we urged upon the IBA to hold discussion on all other residual issues also so that same can be resolved amicably at the earliest. क्या क्या बातें हुई पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ। प्रोविजन टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर इंश्योरिंग revision in pension during every wage revision settlement. Pending this finalization, updation of pension for all pensioners who retired from 1st January 86 to 31st October 2017. While updating pension as above, pre-November 2002 pensioner to be kept in mind keeping their earlier tapering DA formula. Improvement in pension schemes like additional pension above the age of 80, 90, 100, full pension to be given for 20 years service and above instead of present 33 years, calculating basic pension based on average of last 10 months or last month basic pay whichever is beneficial to the pensioner on the line of RBI and the government scheme. Bringing pension at all retirees at the uniform price index of 6352 points. Revision in ex gratia pension of pre-1986 pensioners. Pension for resigning employee, जो एम्प्लॉइज ने रिजाइन कर दिया है उनको भी पेंशन का प्राविधान किया जाए। क्लेरिफिकेशन ऑन फॉल्स कंप्लेंट्स ऑफ डाइवर्जन ऑफ पेंशन फंड ऑफ बैंक्स, यानी कि जो पेंशन फंड के बारे में रोज कुछ न कुछ भ्रांतियां आती रहती हैं उनको दूर करने का भी जो क्लियरिफाई किया जाए ताकि ये पता चल सके कि वाकई वो उसमें कोई गड़बड़ी यानी पेंशन फंड में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। We further inform that all these issues can be further discussed in detail by convening a physical meeting for the negotiation at the earliest when understandings can be reached on all matters looking to the cost aspect, etc. Improvement of family pension at 30% without ceiling, enhancement of management's contribution from 10 to 14% under NPS for post 2010 employees. We pointed out that the improvement in family pension at 30% without ceiling and enhancement of management's contribution from 10 to 14% under NPS for post 2010 employee have been agreed upon the part of the bipartite settlement, but the matters are still pending for approval with the government. We urged upon the IBA to follow the matter with the government to expedite the approval without further delay. Comrades, all of our members will recall that on the same day, last day of 20 July 2020, there was a
crucial negotiation between IBA and unions when the MOU was finalized. फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने की बात यह है, ये सच है कि 22 जुलाई 2020 को MOU साइन हुआ था, लेकिन वो सारे प्रकरण अब समाप्त हो गए। MOU साइन हुआ, बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ, लेकिन जो उसमें पेंडिंग मुद्दा है फैमिली पेंशन का, NPS कंट्रीब्यूशन का, 5 डे वीक का, इनका केवल पत्राचार अथवा रिक्वेस्ट करना नहीं, इसका अप्रूवल चाहिए। ठीक है, IBA ने एक मीटिंग कॉल की और सबसे बड़ी बात है कि जो मीटिंग में उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की, जिसके वजह से पेंशन अपडेशन स्कीम जो रिटायरीज का 26 ईयर पुराना एजेंडा है, उसके लिए एक शुरुआती प्रारंभिक बातें की। लेकिन जो चीज बाइपार्टाइट सेटलमेंट में अप्रूव हो चुका है, फैमिली पेंशन और NPS कंट्रीब्यूशन, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनका अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से शीघ्र होना चाहिए। ये IBA यूनियन इन दोनों पे टाला मटोल से कोई काम नहीं होना, इसे जल्द से जल्द अप्रूवल करें। ये सच है कि पेंशन अपडेशन का मामला इतना आसान नहीं है जो यूनियन अथवा IBA मान लेगी। उसके लिए वो सबसे बड़ी बात बर्डन और अपलोड की है, जिसका डिस्कशन एक छोटे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना संभव नहीं है। उसके लिए जब तक फिजिकली मीटिंग नहीं होगी, हर एक्सपेक्ट पे बातें नहीं होंगी, तब तक पेंशन अपडेशन स्कीम फाइनलाइज नहीं होगा। लेकिन अप्रूवल ऑफ फैमिली पेंशन और NPS कंट्रीब्यूशन, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। उनका अप्रूवल करने के लिए यूनियंस को, IBA को इस तरह से करना, प्रेशराइज करना चाहिए कि इसका अप्रूवल विद इन वीक्स टाइम आना चाहिए। तब तो इन सब मीटिंगों का कोई लाभ है, अन्यथा ऐसे मीटिंग होते रहेंगे और ऐसे मिनट्स आते रहेंगे और सोशल मीडिया पे ऐसे बातें फैलती रहेंगी, लोग वीडियो बनाते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे। इसका कोई तात्पर्य नहीं है। फ्रेंड्स, हमारी डिमांड है कि ये यूनियन और IBA इस फैमिली पेंशन और NPS कंट्रीब्यूशन का मुद्दा इधर एक हफ्ते के अंदर सुलझा है, तब तो कोई बात बनती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू।